ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦੋ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ, ਇਕੋਨਮੀ, ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਨੋਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੀਕੇ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਔਰ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। थैंक यू वेरी मच युद्धवीर जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल आवर लिसनर्स जी। गुड मॉर्निंग सर। और पंकज जी, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਈ ਮੀਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡੀਓ ਵਾਈ ਚੈਨਲ ਵਾਈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਵੈਲਕਮ। थैंक यू वेरी मच युद्धवीर जी ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਜੀ। ਪੀਕੇ ਜੀ, ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। बड़ी वड्डी है जी ये। फिर सारे थोड़े थे डिस्कशन आई डोंट नो मेरे ज्वाइन करने तो पहले होया कि नहीं है ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ इन्होंने 0.75 ਜਿਹੜਾ ਜੰਪ ਇੰਟਰਸਟ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ, ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਵੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, दिस वाज एक्सपेक्टेड। लेकिन मैं दूजे पासे रियल स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू कह दिया कि लैंड प्राइसिस फॉर हाई डेंसिटी GTA प्रॉपर्टीज वो बड़े जबरदस्त वो भी ड्रॉप हुए हैं, बड़े जबरदस्त। $112 पर बिल्डेबल स्क्वायर फीट तो सिर्फ एक क्वार्टर अंदर दे हैव कम डाउन टू $95 पर बिल्डेबल स्क्वायर फीट, विच इज वेरी गुड साइन। बाकी बहुत गल्लां अलग ने कि बिल्डर्स वास्ते इस वक्त डेवलपमेंट चार्जिस 50% ਵਧੇ ਪਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਾਸਟ ਦੇ ਆਰ ਐਕਸਪੈਕਟਿੰਗ ਕਿ 10% ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ। those are some negative points, but ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਲਡਰਸ ਆਰ ਨਾਓ डेवलपर जिन्होंने कहो, बिल्डर तो नहीं कहेंगे, डेवलपर कहेंगे क्योंकि बिल्डर तो अलग हो गया। डेवलपर्स आर नाउ टेकिंग दिस प्रिकॉशन, वेट एंड सी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੈਂਟਰੀ ਲੈਵਲ ਬੜਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਅਗੇਨ। ਜੀ ਜੀ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪੰਕਜ ਜੀ, ਓਪਨਿੰਗ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਪੀਕੇ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਕਿਹਾ ਜੰਬੋ ਸਾਈਜ਼ ਅਗੇਨ 0.75 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਔਰ ਪੀਕੇ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵੀ 75 ਆਣਾ ਹੀ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧੇ ਨੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਹੈ 0.50 ਫੇਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਕੀਟ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅੱਜ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ, ਉਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ 'ਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੋਰ ਉੱਤੇ ਵਧਾਣੇ ਪੈਣਗੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਟੇਟਮੈਂਟ। ਸੋ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਡੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਵਧਾਉਣਗੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਇਸ ਈਅਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ 75 ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ 1% ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਜਿਹੜਾ 75 ਵੱਧ ਚੁੱਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਅਗਲੇ ਦੋ ਆਣੇ ਨਵੰਬਰ ਔਰ ਅਕਤੂਬਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੇਟ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ 'ਚ 50 ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ 25 ਵਧੇ ਜਾਂ 50 ਵਧੇ, ਬਟ ਇੰਨਾ ਹੋਰ ਵਧਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰੇਗਾ ਡਿਪੈਂਡ। ਜਿਵੇਂ 20 ਸਤੰਬਰ ਹੈ, 20 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 ਅਕਤੂਬਰ ਉਸ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਡੇਟ ਹੈ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਦੋ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਗੀਆਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੋ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੈ 26 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ 0.50 ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ CIBC ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਬੜਾ ਇਹਦੇ ਉਲਟਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹਾਈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਟੇਕ ए ब्रेक नाउ, दे शुड टेक ए ब्रेक एंड सी, क्योंकि इकॉनमी यदि स्लो डाउन हो रही हैगी, वेट करके थोड़ा स्लो डाउन करके थोड़ा ब्रेक लैन के बाद इन्होंने डिसीजन लेना चाहिए, फास्ट डिसीजन नहीं लेना चाहिए। यह सलाह दे रहे हैं। बाकी बैंक ऑफ कैनेडा एग्रेसिवली चल ही रहेगा। मैं भी इस पॉइंट ऑफ व्यू नाल सहमत होवांगा कि 26 अक्तूबर ਨੂੰ बजाए ਉਹਦਾ थोड़ा ਜਿਹਾ ब्रेक अगर इस साल लै लैन तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ यूज्ड हो जाएगी। अदरवाइज ਇਹ भी बड़ी बड़ी रिपोर्ट है ना जी कि 7,50,000 नॉट ए स्मॉल नंबर, 750,000 ਜਿਹੜੀ ਮੌਰਗੇजेस ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਟ੍ਰਿਗਰ ਰੇਟ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਦਾ ਡੇਂਜਰ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਵਾਂਗਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਸਰ, ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿੱਥੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 25% ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 3.25 ਤੇ ਲੈ ਆਏ, ਕਿੱਥੇ 0.25% ਤੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ 3.25% ਤੇ ਲੈ ਆਏ। ਸੋ ਸਰ 1.58 ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ 1.5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1.6
6 तक आम मॉर्गेज चल रही सी मार्च तक, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ 4.6 ਹੋਣਾ, 4.7, 4.8, 4.9 ਇੱਥੇ ਤੱਕ 4.95 ਵੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜੰਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ 7,50,000 ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੌਰਗੇਜਿਸ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸਕ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਬਵੀਅਸ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਤੋਂ 2-3 ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਫੋਨ ਫਿਰ ਫॉरवर्ड ਕੀਤਾ कि भाई मैंने फोन आ रहे हैं। मैं एक भाई साहब ने यह भी किया कि आप रेडियो पे आके पूछो ये बात। सर साल पहले जिन्होंने कर लेता वो बेचने वास्ते पीछे दौड़ रहे हैं इसका साढ़े, तो दे हैव नो चॉइस। ऐसे उन्होंने क्या है कि आप दूसरी तरफ फंस जाओगे, इसको किस तरीके से स्टैंड करो, क्योंकि आप उससे आ जाओगे। अगर आप मॉर्गेज को होल्ड कर लेते हो 1 साल और देखो ना, एक दूसरे पास बैंक ऑफ मॉन्ट्रियल की रिपोर्ट आ चुकी है, वो कहते हैं कि बहुत जल्दी रेट थले जाना मतलब ही नहीं उठता, इट विल स्टे लॉन्गर। ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਅੱਗੇ ਕੂਆ ਪਿੱਛੇ ਖਾਈ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਭੀ ਕੋਈ ਡਾਲਕ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਵੇਚੋ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਗਿਰੀ ਪਈ ਹੈ 20-22%, ਹੋਲਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ऊपर वाले के भरोसे मकान ले रहे थे, ऊपर वाला ठीक करेगा, आप कर ले ऊपर वाला ठीक तुम्हारा सारा काम। सिंपल सी बात है। क्या क्या कि मोगा साहब थक गए सी, असी मोगा साहब याद होगा सी टीवी च किन्ना कहते थे रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। हुण इहो लोग ने ज्यादातर जिहड़े कि इस वक्त परेशान। ट्रब ने बड़ी वड्डी जबरदस्त अपील की हैगी, ट्रब ने बड़ी वड्डी अपील की हैगी कि तुसी एटलीस्ट एमोटाइजेशन बता दो और स्ट्रेस टेस्ट नूं हटा दो। ਇਹ दो चीज़ां तुसी कर सकते हो ना सर। ਇਹ ਤੇ सरकार के हत्थ 'ਚ है ना, ਇਹਦੇ अंदर कोई इफेक्ट ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ इकॉनमी का कोई असर होने वाला नहीं है ना। ਇਹ दोनों और मुझे लगता है कि ਇਹ दोनों काम होने वाले नहीं बड़ी जल्दी जी। ठीक है, हाँ जी पंकज जी कह रहे हो। जी जी बिल्कुल पीके जी नाल मैं बिल्कुल सहमत है। ये चीज़ां हो जान तो थोड़ा जिहा रिलीफ मिल जाएगा। बट बैंक ऑफ कैनेडा एक अलग तरीके नाल चल रहा है। बैंक ऑफ कैनेडा ऑन दी अज स्टेटमेंट ये लाइन भी हैगी है कि हाउसिंग मार्केट से जो इफेक्ट आया है वो सानू पता सीगा और विच वाज रिक्वायर्ड, उन्होंने लाइन कही है। सो बेसिकली उन्होंने बड़ा सोच समझ के गल कही है इहदे वास्ते भी। लेकिन पीके जी जिहड़ी गल कह रहे हैं अमोर्टाइजेशन दी ते स्ट्रेस टेस्ट दी, वो सानू रिलीफ चाहिए है। बेसिकली वो रिलीफ आ जाएगा तो कम से कम ਜਿਹੜੇ लोग फस गए ने पूरी तरह, जिन्हों ने जेन्युइन लोग भी फस गए ने, उन्होंने रिलीफ मिल जाएगा इस सिचुएशन। सो दिस माइट बी रिक्वायर्ड। बट इंटरेस्ट रेट मैनू नहीं लगता सर हले रुकन वाला ऊपर जाएगा सर हले होर जी। ठीक है। तो लेकिन मेरा सवाल यह है कि देखो सारी जिहड़ी इकोनॉमी है सब कुछ चलता है रियल स्टेट दे नाल। पंकज जी तुहाडे कोल पहला पुछांगा फिर मैं पीके जी वाल आवांगा। जे घरां दी जिहड़ी सेल है वो लगातार घट रही है, ठीक है नहीं जी, सेल लगातार घट रही है तो फिर काम किस तरह चलेगा? नहीं सर एक्चुअली की है साडी जिहड़ी GDP दा जिहड़ा हाउसिंग पार्ट है वो 10% है, जिंदे चो हाउसिंग नाल चलता है। मतलब लोग रहंदे ने, खांदे ने, पींदे ने, खर्चा करते ने, टीवी लैके आंदे ने, सोफे खरीदते ने, कुर्सियां कंप्यूटर खरीदते ने। सो ये सारा हाउस होल्ड स्पेंडिंग च आ जाता है। लेकिन हाउसिंग खरीदना और बेचना मेरे ख्याल से बहुत छोटा जा पार्ट होगा। बिजनेस इन्वेस्टमेंट, सर्विस इंडस्ट्री, ये सारिया चीज़ां बहुत मायने रखदियां ने। साडियां थोड़ी कोर इन्फ्लेशन होंदी है ना जिहड़ी सर, कोर इन्फ्लेशन च असीं एनर्जी और फूड नूं तां वैसे ही बाहर कर देंगे। सो वो इन्फ्लेशन असीं देख रहे हैं कि इन्फ्लेशन थल्ले आई है 7.6 आ गई। नहीं सर, कोर इन्फ्लेशन ऊपर गई थी पिछले बार। सो अगर एनर्जी एंड फूड नूं बाहर कर दिए तो कोर इन्फ्लेशन 5 पॉइंट समथिंग ऊपर थी। तो उन्होंने कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। इस वे साड़ी जी जॉब मार्केट है बहुत टाइट है, डिमांड बहुत है, सर्विस डिमांड बहुत है, उन्होंने रोकने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अगर हाउसिंग तो थले आ गया युद्धवीर जी, लेकिन दूजे पासे तो कोई भी चीज हले थले नहीं आ रही। हर चीज से जोर पिया है, हर चीज की डिमांड। किहड़ा बंदा जिहड़ा काम नहीं करांदा पिया आपदे घर चले भी मैनू ड्राइववे बनाने जी, पेंट कराना जी, ये करना जी, वो करना, हले भी चलता पिया। असी प्लेन भर के जा रहे हैं, असी छुट्टियां ते जा रहे हैं, रेस्टोरेंट भरे पे ने। वो पैसा भी तो रोकना है ना युद्धवीर जी। वो पैसा किवें हाउसिंग का इंटरेस्ट रेट की वजह नाल, क्योंकि लोन है बेसिकली। लेकिन जिन्हां दे हत्थ 'च पैसा है वो खर्ची जा रहे हैं उन्होंने, और खर्चा कारां नहीं मिलदियां पियां हले भी। सो बेसिकली वो सारिया चीज़ों को रोकना बहुत जरूरी है मेरे हिसाब नाल। तां ही असीं करांगे, नहीं तो हाथ चों निकल गई तो असीं वैसे ही बड़े रिसैशन से जावांगे। अगर इन्फ्लेशन ऐसे तरह बढ़ती चली गई तो फिर एक तो कड़वी दवाई पीनी पएगी सानू। सर वैसे मैं तुहानूं दस्सां जो भी होए, लेकिन बबल बस्ट वाली जिहड़ी गल्लां ने ना, ਇਹ ਤੇ खैर हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है जिस हिसाब नाल इत्थे। हां जी बबल तो कोई है ही नहीं जी।
है ही नहीं कोई जिहड़ा लोकी मैं सिंपल जी गल है जी देखो इन्नी जबरदस्त परेशानी के बावजूद ट्रब की जी उन्होंने रिपोर्ट आई हैगी मंथ ओवर मंथ 0.9% कीमत वध गई है इट हैज गॉन अप टू 1,79,000 मैं सिर्फ ट्रब के हिसाब से कह रहा सर ऑल ओवर कैनेडा की गल नहीं कर रहा मैं पॉइंट उन्होंने वास्ते बड़ी बैड न्यूज़ है ना जी जो वेट कर रहे हैं कि बस्ट होएगा तो लांगे बस्ट होएगा तो लांगे वो हो नहीं सकता इस ओंटारियो अंदर मैं शुरू तो कहता आ रहा बस्ट वाली गल तो हो ही नहीं सकती जिन्ना मर्जी इंटरस्ट रेट चला जाए जिथे मर्जी उत्थे चला जाए क्योंकि इहदे अल्टीमेटली इसका इंपैक्ट आना ही आना है इकॉनमी के उत्ते और जिन्होंने कहते इन्फ्लेशन के उत्ते लेकिन हाउसिंग उत्ते इसका टैंपरेरी इफेक्ट है तुम देखते रहना सर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर पहला तो नजर आई है थोड़ा सिनेरियो 0.9% और सेल ड्रॉप जी हैगी रफ्तार बहुत जबरदस्त घट गई है इस वक्त घट हो भी रही है पर रफ्तार घट गई है लोग बाहर मार्केट मेरे ऑफिस तो कल 5 डील हुई 5 डील्स इन लास्ट 2 डेज हुई ने मंडे was the firm deal सी because it was a long weekend उसके बावजूद डील चलती रही ने तो मंडे एंड ट्यूजडे के अंदर यस बाहर मार्केट आ गए ने वो कह रहे हैं उन्होंने ले लो हूँ अगे पता नहीं की होएगा यस बस वाली गल तो है ही नहीं खैर पीके जी देखो तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जेन्युइन जिहड़ा बायर है जेन्युइन जिहड़ा इन्वेस्टर है वो तो कदे भी नहीं रुकता अच्छे जो लोग रुके ने वो लोग ने जो पहले ही स्पैकुलेशन कर रहे थे सो बस वाली तो सिचुएशन ही नहीं हैगी उन्होंने क्रिएट की थी कोई चीज खत्म हुई है सो बेसिकली मेरे हिसाब नाल एक तरह की असी करैक्शन लेके गए हैं एक करैक्शन कैटेगरी च बैठे हैं असी कोई बबल तो बनिया ही नहीं सीगा पता नहीं पीके जी मैं अजे भी असं 11% उत्ते बैठे हुए हैं 2 साल तो पहले तो अजे भी 2 साल पहले तो 11% उत्ते बैठे हुए हैं वैसे देखा है तो मैं एक वर्ड कहूँगा लोगों को पसंद नहीं आएगा लेकिन अगर असी 8% तक चले जाने 3% होर भी गिरता है तो जाके लैवल ते असीं आने अदरवाइज देखा तो हूँ भी असी 4% की एवरेज के हिसाब से 3.5-4% की एवरेज हिसाब से असी अजी भी 5% उत्ते बैठे हुए हैं सो अगली कॉल बढ़ते हैं जी हाँ जी अमरीक जी तुम आते रहो गो हैड वेरी गुड थैंक यू सर सब तो पहला सारे भैन भरावान सत श्री अकाल और पैरी पैना सारे आंदे और सत श्री अकाल सबरवाल साहब और मोगा साहब थोड़ी जी प्यार है दोनों भरावान का बहुत ज्यादा परमात्मा थोड़ा प्यार ऐसा बना के रखे और जसवाल साहब तुम तो है ही इन्हों के छोटे भरा हैं सबरवाल और मोगा साहब के और बड़े ने साडे चंगी गलबात करते हैं सबरवाल साहब सब तो पहला सवाल तुहानू बहुत बार तुसी तो देखो मैं मेरे वर्गे जिहड़े हो रियल्टर ने मेरे भैन मेरिया भरा ने कुछ भैन मेरिया रियल्टर एज ए रियल्टर काम करते हैं वो वीर जी कह के या भाजी कह के ऐसा पंगा पा देंगे है ना गुस्सा ना करन कोई मेरा रियल्टर मैं सबरवाल साहब थोड़ी गल नहीं कर रहा प्लीज नहीं बिल्कुल कहो थोड़ा पूरा हक है सर जी 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 ये गल है भी सरदार जी मेरे वीरां नूं जिहड़े साडियां भैणां भरा ट्रक चलाउंदे बहुत सारियां भैणां भी चलाउंदियां ने ट्रक और बड़े रोब नाल टौर नाल मैं चलाउंदियां देखियां ने और सवेरे सरदार 3 बजे भांडे खड़काउण लग जाने तड़के नूं सबरवाल साहब मोगा साहब नोट करियो पेन नाल पेपर दे उत्ते तड़के नूं 3 बजे भांडे खड़काउण लग जांदे आ अपनी रोटी पानी बंद लैंदे आ अपने बैगां दे विच ट्रक चकना हुंदा उन्होंने तड़के 3-4 बजे भांडे हाँ जी सर गल प्लीज अपने अमरीक जी प्लीज गल मुकम्मल कर लो कॉलर्स बहुत वेट कर रहे हैं सर बलविंदर जी ने गल करनी फिर तेजपाल साहब हाँ जी गल प्लीज मुकम्मल कर लो हाँ जी गो हैड हेलो सर जी गल प्लीज क्विकली मुकम्मल कर लो तुसी या तो फोन होल्ड पाता हाँ जी बलविंदर जी तुसी आंदे रहो बलविंदर जी गो हैड ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਕਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਇਹਦੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਟੋਟਲੀ ਟਰੂਥ ਆ ਹੁਣ ਸਬਰਵਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ ਜੇ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਤੋਂ ਕੈਪ ਵੀ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ 6-7% ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੱਧਦੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਖਾ ਹੀ ਰਹੀ ਆ ਜੇ ਉੱਤੋਂ 2-4% ਜਾਂ 6% ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਥੱਲੇ ਹੀ ਘਟੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਫਲੈਟ ਇਨ ਦਾ ਕਰਵ ਸੋ ਬਬਲ ਤੇ ਬਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਬਸਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਵੀ ਡੋਂਟ ਫਲੈਟ ਇਨ ਦਾ ਕਰਵ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੀਅਲ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਮਨੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਆਹ ਦਾ ਰੱਜਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਨ ਮੈਨਸ ਲਾਸਟ ਇਜ਼ ਅਦਰ ਮੈਨਸ ਗੇਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭਾਜੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਕਜ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ ਔਰ ਪੀਕੇ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣਾ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇਜਪਾਲ ਜੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ, ਬਾਕੀ ਕਾਲਰਸ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਬਟ ਐਟ ਦਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੁਇਕਲੀ ਪੀਕੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ, ਐਨੀਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹਾਈਲਾਈਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲੀजिए। बस जी इसको बड़े ओपन प्रोजेक्ट ने जी, हर चीज जो मंगोगे मिलती हैगी, बट यू हैव टू बी वेरी कॉशियस बाइंग। बिल्कुल गल्लां च आके वड्डे वड्डे गिफ्टां च आके तुसीं चीज़ां ना लेना। बिल्कुल तुसीं नंबर्स कैलकुलेट करने के बाद हर चीज अगर तुहानूं सूट करदी है तां ਇਹ गिफ्ट ਉਹ गिफ्ट फलानी चीज जिंगनी चीज, ਇਹ लालच ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ 8-8 9 ਲੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ और 2-2 4-4 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਗਿਫਟਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। लो जरूर लो, प्रोवाइडेड द प्रोजेक्ट इज सूटेबल फॉर यू जी। मेरे को एनी प्रोजेक्ट यू कैन कॉन्टैक्ट मी, आई कैन गेट यू एनी प्रोजेक्ट एज पर योर पोर्टफोलियो एंड यू कैन कॉन्टैक्ट मी 647-299-4757। आई रिपीट 647-299-4757। यू कैन ऑल्सो विजिट teamsabarwal.com। कल मेरी मीटिंग है सुबह 11:45 विद लंटारा बिल्डर टू नेगोशिएट सम प्राइजेस ऑन सम ऑफ देयर एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स। देखो अगर मेरी गल उत्थे मनी जाती है तो फिर मैं तुहानू इमीडिएटली कंटैक्ट करके मैं मार्केटिंग करांगा अगर मेरी मर्जी नाल अगर प्राइस आ जांदे ने ते। जी जी ठीक है जी। पंकज जी जी वीर जी, कोई किसी तरह की भी अगर इंश्योरेंस लैन की तुसीं सोच रहे हो, लाइफ इंश्योरेंस है, क्रिटिकल है, डिसेबिलिटी है, वो चीज़ों वास्ते तुसीं मैनूं कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अगर इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो मार्केट का, तुहाडे कोल तुहाडा रिटायरमेंट प्लानिंग है, पेंशन है, लीरा है, RRSP है, नॉन रजिस्टर्ड है, टैक्स फ्री सेविंग, किसी तरह का भी अकाउंट तुसीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो उनके वास्ते भी मैनूं कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 647-285-1007। थैंक यू वीर जी। थैंक यू सर, और उम्मीद करते हैं थोड़ा बाकी का समय बहुत वधिया बीतेगा। गलबात लगातार जारी रहेगी। 416-475-5000 मेरा नंबर भी ले लो, 647-272-8182। हैव वंडरफुल डे। थैंक यू।